ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور آغاز میں سب سے پہلے تذکرہ کریں گے نئے بلدیاتی بل کا۔ آپ کو بتائیں کہ نئے بلدیاتی بل کے خلاف کراچی کی سیاسی جماعتوں نے ایک دوسرے سے رابطے تیز کر دیے۔ کراچی سمیت سندھ میں نئے بلدیاتی نظام کے خلاف کراچی میں سیاسی جماعتوں کے ایک دوسرے سے رابطے تیز۔ سندھ حکومت کے خلاف حکمت عملی بنانے پر غور، مہاجروں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے کوششیں جاری۔ اپوزیشن جماعتوں نے بھی ایک پلیٹ فارم سے سندھ حکومت کے خلاف محاذ کھولنے کے لیے کمر کس لی، جبکہ سندھ حکومت بھی اپوزیشن کی چالوں کو ناکام بنانے کے لیے تیار ہے۔ کراچی سمیت پورے سندھ میں نئے بلدیاتی نظام کے خلاف کراچی میں سیاسی جماعتوں کے ایک دوسرے سے رابطے تیز ہو گئے۔ سندھ حکومت کے خلاف حکمت عملی بنانے پر غور، مہاجروں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے تمام کوششیں جاری ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں نے بھی ایک پلیٹ فارم سے سندھ حکومت کے خلاف محاذ کھولنے کے لیے اپنی کمر کس لی، جبکہ سندھ حکومت بھی اپوزیشن کی چالوں کو ناکام بنانے کے لیے تیار ہے۔ چیئرمین پاک سرزمین پارٹی سید مصطفیٰ کمال نے حکومت سندھ اور پاکستان پیپلز پارٹی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ پاک سرزمین پارٹی نے بلدیاتی آرڈیننس کو سندھ عوام دشمن بل قرار دے دیا۔ سید مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ ایسے کالے قانون کے نفاذ کو روکنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے یا پھر سیاست چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس بل سے لوٹ مار کے نئے طریقے دریافت ہوں گے۔ کسی تہذیب یافتہ معاشرے میں ایسی قانون سازی کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہم حکومت کے نہیں بلکہ ریاست کے وفادار ہیں۔ پاکستان ہاؤس کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سید مصطفیٰ کمال نے ایک بار پھر پیپلز پارٹی و حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ کہا کہ سندھ حکومت کے کالے قانون کے خلاف ہر سطح اور فورم پر آواز اٹھائیں گے۔ بلدیات کے تحت سندھ اسمبلی میں منظور ہونے والا بل عوام دشمن بل ہے۔ اگر اس پر عمل درآمد ہوا تو ہم سیاست چھوڑ دیں گے۔ اس پیپلز پارٹی کے سیاہ قانون کو 2013 والے بھی اور یہ 2021 والے امینڈمنٹ کو ہم رد کرتے ہیں۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ قانون لاگو رہا، ہو گیا اور یہ چل گیا تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ پھر ہمیں سیاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ قانون اور پی ایس پی کی سیاست ایک ساتھ نہیں چل سکتی، ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ سابق ناظم اعلیٰ کراچی نے کہا کہ دنیا چاند پر پہنچ گئی اور سندھ کی عوام کتے کی ویکسین کو ترس رہی ہے۔ 2300 ارب تعلیم پر خرچ کیے، اس کے باوجود بھی 11,000 اسکول گھوسٹ اور لاکھوں بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ آج کے دور میں جہاں پر دنیا ڈیوالو کر رہی ہے، فردر ڈیوالو کر رہی ہے، ہمارا آئین بھی یہ کہتا ہے، وہاں پر دنیا آگے جا رہی ہے۔ ہم صدیوں پرانے بادشاہوں کے انگریزوں کا زمانہ تو بہت اچھا تھا، بادشاہت کے زمانے میں بھی اتنی اوور سینٹرلائزڈ وے آف مینجمنٹ نہیں ہوتی تھی۔ سندھ کی پیپلز پارٹی جو کام آج سندھ کے ساتھ کر رہی ہے، جو کام آج کراچی حیدرآباد کے ساتھ کر رہی ہے۔ سید مصطفیٰ کمال کا مزید کہنا تھا کہ سندھ اسمبلی سے پاس ہونے والا بلدیاتی آرڈیننس آئین پاکستان سندھ اور عوام دشمن ہے۔ اس بل کا مقصد لوٹ مار اور کراچی پر قابض ہونا ہے۔ یہ ایسا قانون ہے جس کی کہیں بھی کوئی گنجائش نہیں۔ کیمرامین طارق اشفاق کے ساتھ احمد اسحاق، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے متنازع بلدیاتی ترمیمی بل پر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو قانونی نوٹس بھجوا دیا۔ جماعت اسلامی نے سندھ حکومت کو بلدیاتی قوانین کو آئین سے ہم آہنگ کرنے کے لیے 7 روز کا الٹیمیٹم دے دیا۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ شہری حکومت کو بااختیار کیا جائے، اگر 7 دن میں نوٹس کے مطابق کارروائی نہ ہوئی تو اعلیٰ عدلیہ کے روبرو قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے متنازع بلدیاتی ترمیمی بل پر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو قانونی نوٹس بھجوا دیا۔ نوٹس میں متنازع شقوں کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ جماعت اسلامی کے قانونی نوٹس میں کہا گیا ہے کہ آئین سے متصادم کوئی قانون سازی کی کوئی حیثیت نہیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے قانونی نوٹس کے حوالے سے بتایا کہ بلدیاتی اداروں کے اختیارات مزید کم کرنے کے لیے سندھ حکومت کی جانب سے بلدیاتی ترمیمی بل 2021
की मंजूरी पर सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आला सिंध को कानूनी नोटिस भिजवा दिया है, जबकि मौजूदा बिल आइन से मुतसादम है। बल्दियाती कानून को आइन से हम आहंग करने के लिए 7 दिन का वक्त दे दिया है। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 2012 और 2013 में शहरी हुकूमत के इख्तियारात में कमी की। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 2012 और 2013 में लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के तहत चलने वाले बहुत से इदारों को अपने मातहत कर लिया। अगर 7 दिन में नोटिस के मुताबिक कार्रवाई ना हुई तो आला अदलिया के रूबरू कानूनी चाराजोई की जाएगी। और अब बात करेंगे महाजिर कौमी मूवमेंट के हवाले से। आपको बताएं कि महाजिर कौमी मूवमेंट ने 19 दिसंबर को कराची में अजीमुशान जलसा करने का ऐलान कर दिया। महाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह आफाक अहमद कहते हैं कि जलसे को महाजिर कन्वेंशन का नाम दिया गया है, जबकि लीडरान का एक होना जरूरी नहीं बल्कि कौम का एक होना बेहद जरूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि इस जलसे में देखूंगा कि कौम इस जलसे में कैसे मुत्तहिद होकर आती है। महाजिर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हकीकी की जानिब से 19 दिसंबर को बाग़े जिना में महाजिर कन्वेंशन का ऐलान। कराची में अपने रिहाइश गाह में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद ने जलसे का ऐलान करते हुए कहा कि बल्दियाती तरमीमी बिल पास कराने का मकसद पीपल्स पार्टी का कराची के वसाइल पर कब्जा करना है। बल्दियाती आईनी तरमीमी बिल को मुस्तरद करते हैं। बिल के खात्मे के लिए असम्बली में मौजूद लोग अपना किरदार अदा करें। कि पीपल्स पार्टी का इस बिल को मंजूर कराने का मकसद सिर्फ ये है कि किसी भी तरह कराची के वसाइल पर मेयर अपना लाकर जो रही सही कसर है उसको पूरा किया जाए। देखिए, सिंध गवर्नमेंट में अगर इदारे सिंध गवर्नमेंट के अंदर उनकी सर्विसेज को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है, इसलिए कि लोकल गवर्नमेंट के इदारे अगर सिंध गवर्नमेंट के मातहत चलते हैं और उनकी मुलाजमतें सेमी गवर्नमेंट मुलाजमत की बजाय सिंध गवर्नमेंट की मुलाजमत में तब्दील हो जाती है तो कोई हमें एतराज़ नहीं है। लेकिन माजी में क्योंकि ये होता रहा है कि लोकल गवर्नमेंट के बहुत सारे इदारे, मिसाल के तौर पर कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, सॉरी अपना ये क्या है आपका कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी KBCA, उस KBCA को SBCA में कन्वर्ट किया गया। जब KBCA था तो कानूनी तौर पर आपको इस शहर के लोकल लोग अपॉइंट करने थे और आपने उसको SBCA में कन्वर्ट करने के बाद अब पियोन और चौकीदार भी आपने दादू और लाड़काना से लाके भर्ती करना शुरू कर दिया। आफाक अहमद का कहना था कि शहर की 2 अहम शख्सियात कराची से कारोबार पंजाब मुंतकिल करने की तरगीब दे रहे हैं। नस्ला टावर को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मिसमार किया जा रहा है। अदलिया काबिल एहतराम है। रॉयल टावर समेत दीगर बिल्डिंग्स की मिसमारी के वक्त आबाद एहतजाज करता तो बेहतर होता। आबाद ने कारोबार बंद किया तो हजारों चूल्हे ठंडे हो जाएंगे। नस्ला टावर के सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दिए कि उसको डिमोलिश कर दिया जाए। उसको मस्मार करने के लिए मशीनरी भी लग गई और उसको मस्मार किया भी जा रहा है। आबाद जो एसोसिएशन है बिल्डर्स की और डेवलपर्स की, उन्होंने मुतअद्दिद जगह एहतजाज भी किए हैं और ख़ासा एक्टिव नज़र आए। मुझे भी ज़ाहिर है कि बिल्डिंग की मस्मारी का दुख है, लेकिन मेरा अपना ख्याल और कहना ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को तो हम चैलेंज नहीं कर सकते। हमारे लिए अदलिया काबिल एहतराम है, लेकिन ये सिलसिला ये कल स्टार्ट नहीं हुआ। इससे पहले भी मुतअद्दिद इमारतें मस्मार की गई हैं। जब रॉयल टावर को मस्मार किया जा रहा था, आबाद को उस वक्त भी इतने ही एक्टिविज़म का मुजाहरा करना चाहिए था, और अगर उस वक्त इतनी एक्टिविज़म का मुजाहरा किया जाता तो मुमकिन है आज जो हमें चीज़ों का सामना है, हम उन चीज़ों से बचने में कामयाब हो जाते हैं। सरबराह MQM हकीकी का कहना था कि कोऑपरेटिव मार्केट में लगने वाली आग दहशतगर्दी का वाकया है। क्या अदालत आलिया कराची में 54% पर कायम तजावुजात को वागुजार करने के लिए कोई अहकाम जारी किए? आज आम आदमी सफर कर रहा है। आफाक अहमद ने मुतालबा किया कि कराची के मामलात पर सोमोटो लिया जाए।
गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी की सरबराही में एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आबाद के 15 रुकनी वफ्द ने गवर्नर हाउस कराची में मुलाकात की। इस मौके पर वफ्द ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दरपेश चैलेंजेस और दीगर मसाइल से आगाह किया और तजावीज़ भी पेश की, जबकि वफ्द का कहना था कि माजी में मुल्क के दीगर सूबों की तरह कराची समेत सिंध के दीगर शहरों के लिए रेगुलराइजेशन की हिकमत अमली मुरतब की जाए। वफ्द के मुताबिक रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत रेगुलराइजेशन कमीशन का कयाम नागुज़ीर है। कंस्ट्रक्शन के हवाले से बिल्डिंग एनओसी और अप्रूवल पर वैसे जोन ऑपरेशन के तहत मुमकिन बनाया जाए। आबाद के वफ्द का कहना था कि नस्ला टावर के मकीन जिस परेशानी से गुजर रहे हैं उनसे इंसानी बुनियादों पर देखा जाए। नस्ला टावर के रिहायशियों की बहाली के लिए कोई हिकमत अमली तैयार की जाए। वफ्द ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की भी ख्वाहिश का इजहार किया, जिस पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने जल्द मुलाकात कराने की यकीन दहानी करवाई। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी की क़यादत में एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स के वफ्द ने MQM पाकिस्तान की क़यादत से मुलाकात की और तामीराती सनतों को दरपेश मसाइल से उन्हें आगाह किया। मोहसिन शेखानी ने कहा कि कराची में कारोबार और सरमायाकारी को रोकने के लिए साजिशें हो रही हैं। शहर को ज़रूरत है कि सब एक पेज पर हो। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि अफसोस कराची में आधा तीतर और आधा बटेर है। 13 साल से चीख रहे हैं कि एक मास्टर प्लान होना चाहिए। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आबाद के वफ्द ने चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी की क़यादत में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की क़यादत से मुलाकात की। आबाद के वफ्द ने MQM के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, आमिर खान, वसीम अख्तर और दीगर को तामीराती सनत को दरपेश चैलेंजेस और दीगर मसाइल से आगाह किया, जबकि मुलाकात के दौरान रेगुलराइजेशन के मामलात समेत दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी का कहना था कि कराची में कारोबार और सरमायाकारी को रोकने के लिए साजिशें हो रही हैं। शहर को ज़रूरत है कि सब एक पेज पर मौजूद हों। टैक्स देने वालों की इज्जत होनी चाहिए। टैक्स देने वालों को ऐसे सड़कों पर हरगिज मारा ना जाए। MQM से बात की है, इस हवाले से कराची के स्टेक होल्डर्स को बिठाएं। मोहसिन शेखानी ने कहा कि हमने तामीरात के हवाले से हड़ताल की हुई है। जाहिर है इस हवाले से कई लोग बेरोजगारी का भी शिकार हो रहे हैं। हमारे मुतालबात ना माने गए तो फिर कराची के बाद दीगर शहरों में भी अपना काम बंद होगा और इस माहौल में हम हरगिज काम नहीं कर सकते। जबकि NOC देने वाला एक इदारा बनाया जाए। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना था कि अफसोस कराची में आधा तीतर और आधा बटेर है। हम 13 साल से चीख रहे हैं कि एक मास्टर प्लान होना चाहिए। नस्ला टावर के मकीनों के साथ बेहद ज्यादती हुई है। बिजनेसमैन सरमाया लगाते हैं, अगर माहौल साजगार नहीं होता तो यहाँ पर कौन सरमाया लगाएगा। वसीम अख्तर ने मजीद कहा कि सिंध हुकूमत के ऑर्डिनेंस के हवाले से आबाद के साथ राब्ते में है। अगर ऑर्डिनेंस में बेहतरी की गुंजाइश होगी तो तजवीज़ ज़रूर देंगे। मुलाकात के दौरान MQM की जानिब से आबाद के वफ्द को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी कराई गई। और अब कुछ बात करेंगे कराची के नस्ला टावर के डेमोलिशन के हवाले से। आपको बताएं कि कराची के नस्ला टावर को गिराने का सिलसिला जारी है। 400 से जायद मजदूर टावर मिसवार करने में मसरूफ हैं, जबकि पिलर्स काटने के लिए हैवी मशीनरी छत पर पहुंचा दी गई। नस्ला टावर के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इकदाम कर दिए गए। नस्ला टावर के अतराफ पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी भी तैनात कर दी गई। और अब कुछ बात करेंगे बल्दियाती मुलाजमीन की काम छोड़ हड़ताल के हवाले से। कराची समेत सिंध भर में बल्दियाती मुलाजमीन की काम छोड़ हड़ताल का आज दूसरा रोज था, जबकि लोकल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज यूनियन सिंध के नुमाइंदों से सिंध के वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने मुलाकात की। नासिर हुसैन शाह ने तमाम जायज मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी भी करा दी, जबकि लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन हड़ताल खत्म करने के लिए भी रजामंद हो गई। कराची समेत सिंध में बल्दियाती मुलाजमीन की काम छोड़ हड़ताल का दूसरा रोज। लोकल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज यूनियन सिंध के नुमाइंदों से सूबा सिंध के वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने मुलाकात की। नासिर हुसैन शाह ने तमाम जायज मुतालबात पूरा करने की यकीन दहानी भी करा दी, जबकि दोनों के दरमियान मुज़ाकरात भी तय पा गए, जबकि लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन हड़ताल खत्म करने के लिए रजामंद हो गई।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कंटोनमेंट एराजी पर कमर्शियल सरगर्मियों से मुतालिक सेक्रेटरी दिफा की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। सुप्रीम कोर्ट में कैंटोनमेंट अराजी पर कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। अटॉर्नी जनरल की सतह पर अदालत ने रिपोर्ट वापस लेने की इजाजत दे दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या सिनेमा, शादी हॉल, स्कूल और घर बनाना दिफाई मकासद है। कराची में तमाम गैर कानूनी इमारतें मस्मार करवा रहे हैं। फौज की गैर कानूनी तामीरात को छोड़ दिया तो बाकी को कैसे गिराएंगे। कारसाज कराची में सर्विस रोड भी बड़ी बड़ी दीवारें तामीर करके अंदर कर दी गई हैं, पर मार्की और ग्रैंड कन्वेंशन हॉल अभी तक बरकरार हैं। काला पुल के साथ वाली दीवार और ग्रैंड कन्वेंशन हॉल आज ही गिराए। कारसाज और राशिद मिन्हास रोड पर इश्तेहारात के लिए बड़ी बड़ी दीवारें तामीर कर दी गई हैं। सेक्रेटरी दिफा ने बताया कि कानून की खिलाफ वर्जियों की निशानदही के लिए तीनों अफवाज की मुश्तरका कमेटी बनाती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आला फौजी अफसरान को घर देना दिफाई मकासद में नहीं आता। फौज रियासत की जमीन पर कमर्शियल सरगर्मियां कैसे कर सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि फौज के तमाम रूल्स और कवानीन के आइन का जायजा लेंगे। फौज मुल्क के दिफा के लिए है, ना कि कारोबार करने के लिए। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा से 4 हफ्ते में अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में लैंड ग्रैपर्स को लगाम डालने के लिए बिलाखिर पुलिस ख्वाब गफलत से जाग उठी। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में लैंड ग्रैपर्स को लगाम डालने के लिए सुरजानी की पुलिस मुतहरिक हो गई। सरकारी जमीनों पर कब्जे का मास्टरमाइंड अलाउद्दीन जतोई गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि पुलिस के मुताबिक अलाउद्दीन जतोई सुरजानी की हुदूद में सरकारी जमीनों पर कब्जों में बराह रास्त मुलव्विस था। अलाउद्दीन जतोई पहले भी पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो चुका है। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में लैंड ग्रैपर्स को लगाम डालने के लिए पुलिस मुतहरिक हो गई। सरकारी जमीनों पर कब्जे का मास्टरमाइंड अलाउद्दीन जतोई गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक अलाउद्दीन जतोई सुरजानी के हुदूद में सरकारी जमीनों पर कब्जे में मुलव्विस था। अलाउद्दीन जतोई पहले भी पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो चुका है। शहर कायद के इलाके मंगोपीर में वाटर बोर्ड ने गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में कायम गैर कानूनी हाइड्रेंट आखिरकार मिसमार कर दिया। कराची में वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह की खुसूसी हिदायत पर वाटर बोर्ड हुक्काम की जानिब से गैर कानूनी हाइड्रेंट के खिलाफ कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान एंटी थेफ्ट सेल वाटर बोर्ड ने गैर कानूनी हाइड्रेंट को मिसमार किया, जबकि कार्रवाई के दौरान सैकड़ों फुट पाइप भी कब्जे में ले लिया गया। एंटी थेफ्ट सेल इंचार्ज अब्दुल वाहिद शेख के मुताबिक गैर कानूनी हाइड्रेंट चलाने वाले मुल्जिमान के खिलाफ मुताल्लिका थाने में मुकदमा दर्ज कराए जाएंगे। आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में शहर कायद में गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ ताबड़तोड़ ऑपरेशन जारी। कराची को तजावुजात से पाक करने का मिशन। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जमशेद डिवीजन में बर्न्स रोड के अतराफ कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जबकि रोड और फुटपाथ पर रखे ठेले, पथारे और होटल का सामान जब्त कर लिया गया। दुकानों के आगे बनाए गए चबूतरे और दीवारें भी मिसमार कर दी गई, जबकि ऑपरेशन के दौरान मज़ाहमत पर 3 अफराद को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी की ज़ेर निगरानी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जमशेद डिवीजन में बंस रिकॉर्ड रोड के अतराफ कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। रोड और फुटपाथ पर रखे ठेले, पथारे और होटल का सामान जब्त कर लिया गया। दुकानों के आगे बनाए गए चबूतरे और दीवारों का मसमार किया गया। कार्रवाई डिप्टी डायरेक्टर अमीन लाखानी, असिस्टेंट डायरेक्टर गौहर पीरजादा व इलाका पुलिस ने की। ऑपरेशन के दौरान मज़ाहमत पर असिस्टेंट कमिश्नर अरसलान ने 3 अफराद को गिरफ्तार करके इलाका पुलिस को FIR दर्ज कराने का हुक्म दिया। हाफिज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के डिप्टी कमिश्नर ज़ैनुल आबदीन अंसारी का डिस्ट्रिक्ट वेस्ट मंगोपीर के 5 मकामात पर ऑपरेशन करने की हिदायत।
कहते हैं कि ऑपरेशन 30 नवंबर से 4 दिसंबर तक जारी रहेगा। ऑपरेशन के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निपटने के लिए सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल मदद हासिल की जाए। डिप्टी कमिश्नर वेस्ट ज़ैनुल आबदीन अंसारी का डिस्ट्रिक्ट वेस्ट मंगोपीर के 5 मकामात पर ऑपरेशन करने की हिदायत। कहते हैं कि ऑपरेशन 30 नवंबर से 4 दिसंबर तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निपटने के लिए सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल मदद हासिल की जाए। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए बल्दियाती खबरों के साथ। वेलकम है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि कराची के इलाके जिला वस्ती में कुत्तों की भरमार हो गई, जबकि टोलियों की सूरत में घूमते आवारा कुत्ते शहरियों के लिए अब खौफ की अलामत बन गए। बुजुर्ग खवातीन और बच्चों का घरों से निकलना भी अब मुश्किल हो गया, जबकि जिला इंतजामिया की सख्त गजीद की मुहिम भी महज दावों तक महदूद रही। जिला वस्ती आवारा कुत्तों से भर गया। टोलियों की सूरत में घूमते आवारा कुत्ते शहरियों के लिए खौफ की अलामत बन गए, जबकि बुजुर्ग खवातीन और बच्चों का घरों से निकलना भी अब मुश्किल हो गया। जिला इंतजामिया की सख्त गजीद की मुहिम भी महज दावों तक महदूद। इंतजामिया ने नजरें चुराई, शहर कराची आवारा कुत्तों से भर गया। कराची के जिला वस्ती में बढ़ती आवारा कुत्तों की तादाद शहरियों के लिए शदीद खतरे की घंटियां बजाने लगीं। जिले में जगह जगह आवारा कुत्तों की भरमार से परेशान अवाम ने कहा कि कुत्ते हमारे लिए अजियत बने हुए हैं, इंतजामिया तो ना आई, हम रोज अपनी मदद आपके तहत इन्हें भगाते हैं। बहुत ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा। जब से ये गुजर नाले की कटिंग वटिंग हुई है, इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा हो गए कुत्ते यहाँ। बच्चों का गुजरना, बच्चे बाहर नहीं निकल सकते, कोई जा नहीं सकते कहीं भी। भाई रात भर भोंकते, पूरी टोलियां की टोलियां, कोई पैदावार ही इतनी हो गई है। अभी भी तकरीबन पीछे गली में बहुत सारे कुत्ते पैदा हुए हैं। इलाके में इस कदर कुत्ते हो गए कि लोग परेशान है कुत्तों से, समझे ना। हर गली में 8-10 कुत्ते ही कुत्ते भरे पड़े हुए हैं। बच्चों के पीछे, बच्चे सुबह पढ़ने जाते हैं, बच्चों की टांग पकड़ लेते हैं। ये मैं इधर से बैठा होता हूँ ना, औरतें बच्चे यहाँ से गुजरते हैं तो इतना उनको तंग करते हैं कि बच्चा लेके आता है ना कोई सामान बेचने के लिए। मैं कबाड़े का काम करता हूँ, जब बेचने के लिए आता तो उसके वो अपनी बोरी फेंक के चले जाते हैं। उसकी वजह से मैंने ये गुलेल बनाई है। और इस इधर से कुत्ते इतने थे हद से ज़्यादा, और वो उनको डरा के ये गुलेल मार के उनको इधर से भगाया। अब जो है ना कुत्ते यहाँ अगर आते थे, मैं गुलेल दिखाता हूँ तो भाग जाते हैं। बहुत ही परेशानी हैगी ना, बच्चे बाहर निकल सके ना हम कोई बड़े बाहर निकल सकते हैंगे। अगर हम बूढ़े कुछ लेने जा रहे हैं, पीछे लग जाए तो हम भाग भी नहीं सकते, हम तो गिर जाएंगे। बच्चों को काट ले तो कौन अब इनको अस्पताल लेके भागे। बच्चों को बुलाओ वहाँ से कि बच्चों के साथ ये हो गया, फिर ये लेके जाएंगे। जिला वस्ती में जहाँ नजरें दौड़ाई जाएं वहाँ आवारा कुत्तों की बहुतात है। दिन हो या रात आवारा कुत्ते अवाम के लिए वबाले जान बने हुए हैं। शहर के पोश इलाकों में आवारा कुत्तों की भरमार से आवारा कुत्तों की दहशत बरकरार है, जबकि जिले इंतजामिया की जानिब से सख्त मुहिम भी महज दावों की हद तक महदूद है, जहाँ तमाम तर इकदाम के बावजूद भी आवारा कुत्तों की तादाद में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है। कैमरामैन सैयद ताबिश के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। और अभी आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी डॉक्टर साजिदा काजी ने कॉलोनी स्पोर्ट्स ग्राउंड से मलीर पाक स्टार ग्राउंड तक की तबाहाल ग्रीन बेल्ट की बहाली का ऐलान कर दिया। कहती हैं ग्रीन बेल्ट पर अर्बन फॉरेस्ट मंसूबे के तहत हिकमत अमली मुरतब कर ली है, जबकि आइंदा 10 रोज में ग्रीन बेल्ट की हालत में नुमाया बेहतरी भी नजर आएगी। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी साजिदा काजी ने म्यूनिसिपल कमिश्नर इरशाद अहमद और महकमा सैनिटेशन बागात और दीगर के हमरा मॉडल जोन मलीर का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने मॉडल जोन मलीर के पार्कों, ग्राउंड्स, ग्रीन बेल्ट की बहाली के कामों का जायजा लिया। दौरे के दौरान खेल के मैदान और पार्कों की तज़ीनो आराइश के जारी कामों के हवाले से महकमा बागात के अफसरान ने एडमिनिस्ट्रेटर और म्यूनिसिपल कमिश्नर को ब्रीफिंग दी, जबकि महकमा सैनिटेशन के अफसरान ने मॉडल जोन मलीर में सफाई सुथराई की सूरत हाल और महकमा जाती इकदामात से आगाह किया।
इस मौके पर बल्दिया कोरंगी के एडमिनिस्ट्रेटर साजिदा काजी ने कॉलोनी स्पोर्ट्स ग्राउंड मलीरता पाक स्टार ग्राउंड तक की तबाह हाल ग्रीन बेल्ट की बहाली का ऐलान करते हुए कहा कि ग्रीन बेल्ट पर अर्बन फॉरेस्ट मंसूबे के तहत हिकमत अमली मुरतब कर ली है। आइंदा 10 रोज में ग्रीन बेल्ट की हालत में नुमाया बेहतरी नजर आएगी। तकरीबन 10 पार्क हमारे पिछले 3 महीने में कंप्लीट हो चुके हैं। उनकी फाइनल टचेस के लिए हम अब विजिट्स कर रहे हैं, देख रहे हैं जहाँ पे जो कमी है वो कर रहे हैं ताकि रिहैबिलिटेशन कंप्लीट मुकम्मल हो सके। और उसके साथ साथ पार्कों के इर्द गिर्द जहाँ पे रोड कार्पेटिंग की ज़रूरत है या ब्यूटिफिकेशन की ज़रूरत है तो वो काम भी चल रहे हैं। सफाई सुथराई के हवाले से ये है कि हम वैसे तो हम 15 तारीख से सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने टेक ओवर करना था कुरंगी में, लेकिन वो अभी तक नहीं हो सका। हम लोग जो है दिन रात अब हमारे ऑपरेशंस चल रहे हैं। मैकेनिकल स्वीपर्स भी रात में चल रहे हैं। उसके अलावा जो टीमें हैं उनको डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट में कन्वर्ट कर दिया ताकि दिन रात सफाई मुकम्मल हो सके। जहाँ जहाँ हमें वीरानी नज़र आ रही है, जहाँ जहाँ मुमकिन हो सक रहा है, हम लोग ग्रीन बेल्ट्स की रिहैबिलिटेशन पे काम कर रहे हैं। और इस दफ़ा जो हम मुख्तलिफ कर रहे हैं वो ये है कि हम बोरिंग से की मदद से मशीनरी वहाँ पे लगा रहे हैं ताकि एक सस्टेनेबल सोल्यूशन निकाला जाए, किसी पे रिलाय ना करना पड़े और पानी जो है वो मुसलसल उनकी फराहमी हो ताकि जो हम चीज़ लगा रहे हैं उसकी मेंटेनेंस भी हो सके और वो ख़राब ना हो। म्युनिसिपल कमिश्नर इरशाद अहमद का कहना था कि ग्रीन बेल्ट पार्क और मैदानों की बहाली से बल्दिया कोरंगी में तरक्की के नए सफर का आगाज होगा, जिससे यहाँ के मकीनों को सहूलियात मैसर आएंगी। दौरे के दौरान उन्होंने अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि बल्दिया कोरंगी में मुतादिद तरक्याती काम तेजी से तकमील की जानिब गामजन है। अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पर बल्दिया कोरंगी के अफसर वक्कास सोमरो और सलीम रजा भी मौजूद थे। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख ने कहा है कि जिला शर्की को मुनव्वर और रोशनी से आवेजा करने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं, जबकि कोशिश कर रहे हैं कि जिला शर्की रोशन डिस्ट्रिक्ट्स में सरे फहरिस्त हो। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इम्तियाज भुट्टो के हमरा मुख्तलिफ यूसीज में स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब और मुरम्मत के कामों का मुआयना किया। दौरे के दौरान एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इम्तियाज भुट्टो ने उन्हें स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से जिला शर्की में किए जाने वाले कामों के हवाले से ब्रीफिंग भी दी। उन्होंने शहीद मिल्लत रोड और अल्लामा इकबाल रोड पर स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब और मुरम्मतों के काम के मुआयने के दौरान एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इम्तियाज भुट्टो को हिदायत दी कि इसी तरह बल्दिया शर्की की हुदूद में मौजूद दीगर शाहराहों का भी सर्वे किया जाए और जहां जरूरत हो वहां स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब और मुरम्मत के काम किए जाएं, जबकि साथ ही इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से मौजूद शिकायत के अजाले को भी मुमकिन बनाया जाए। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख का कहना था कि जिला शर्की को मुनव्वर और रोशनी से आवेजा करने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि जिला शर्की रोशन डिस्ट्रिक्ट्स में सरे फहरिस्त हो। शाहराहों को रोशन करने के साथ साथ चौराहों को खूबसूरत और रोशनियों की मदद से दिलकश भी बनाया जा रहा है, जिससे जिले की खूबसूरती में मजीद इजाफा हो रहा है। दौरे के मौके पर उन्होंने स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब और मुरम्मत के काम पर इत्मीनान का इजहार किया और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर मुबीन शेख और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इम्तियाज भुट्टो और उनकी टीम की काविशों को खूब सराहा। म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया कोरंगी इरशाद अहमद ने कहा है कि सेहत, सफाई, तालीम, तजावुजात और लोकल टैक्स के निज़ाम में बेहतरी के लिए तमाम काविशें कर रहे हैं, जबकि अफसरान और अमला महकमा जाती कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम को बरोए कार लाएं। म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया कोरंगी इरशाद अहमद की ज़ेरे सदारत महकमा जाती अफसरान का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें महकमा लोकल टैक्स, सैनिटेशन, तालीम, एंटी इंक्रोचमेंट, चार्ज पार्किंग समेत दीगर महकमों के मुतालिक अफसरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान अफसरान ने अपने अपने महकमों की कारकर्दगी से आगाह किया और महकमा जाती उमूर की बेहतरी के लिए तजावीज़ और सिफारिशात भी पेश की। इजलास के दौरान म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया कोरंगी ने मुख्तलिफ इलाकों में